Hello students, how are you all? I hope you all are fine and healthy. Welcome back in your EVS class. So in the last class we all completed with our chapter 2, the food we eat. So today we will start with our new chapter. So without wasting time, let's start. So our new chapter is chapter 3, homes of living beings. लिविंग बींग्स का घर, कि लिविंग बींग कहाँ पे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं। और कई टाइप्स के घर होते हैं, सबके अलग अलग टाइप के घर होते हैं। बिल्डिंग्स होती हैं, कुछ हट्स होती हैं, कुछ छोटे घर होते हैं, कुछ बड़े घर होते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। A house is a place that gives us shelter. It protects us from heat, cold, rain, wild animals, thieves, and storms. The house in which we live with our family is called a home. We should always keep our home clean and throw garbage in the dustbin. Types of houses. Houses are of two types: Kacha house, Pakka house. A Kacha house is made up of mud, straw, and bamboo. It is also called a hut. It is not very strong. A Pakka house is made up of bricks, iron rods, cement, and wood. It is a strong house. Pakka houses are of many types, like a single-story house, a double-story house, and a bungalow. The type of house we live in can be one of the following: hut, flat in an apartment block, bungalow, a small house. In cities we have skyscrapers, which are very tall buildings, each having many flats in them. Some houses, especially in villages, are kacha houses. These are made of mud, straw, bamboo, leaves and sticks. They do not last very long and can be repaired very easily and quickly, because everything needed to build the house is available near the house itself. Pakka houses are found mainly in the towns and cities. They are made of material which is strong. Bricks, steel, iron and cement are used to build such houses. These last for a long time. In Kashmir and Kerala, we find houseboats which are anchored in water. These are popular with tourists. In China, such boats are called sampans. In the Arctic and North and South Pole regions, we find igloos. Igloos are made of ice and Eskimos live in them. Though they are made of ice, they are warm and cozy inside. A caravan is a house which has wheels. Nomads, who are people who move from place to place, live in caravans. People live in temporary houses made of canvas, a type of cloth, when they go camping or live in the forest for a while. In parts of northeastern India and other places in Southeast Asia, people live in houses which are perched atop stilts. This type of house is useful in places where there is heavy rainfall and chances of a flood destroying property. So as you learn about the different houses in which a human being is lived, right? So first of all the question is why we need house. हमें house क्यों चाहिए होता है, हमें घर क्यों चाहिए होता है? But obvious रहने के लिए. And रहने के लिए क्यों चाहिए होता है? Just because house protect us from heat, cold, rain, डस्ट, विंड, जर्म्स, डर्ट. हाउस हमें इन सब से प्रोटेक्ट करता है. अगर बाहर वेदर ख़राब हो जाएगा, बारिश होएगी, तो हम बारिश से खुद को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे?
अगर स्नोफॉल होएगी तो कैसे खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, अगर हमें अपना ज़रूरत का सामान हम कहाँ रखेंगे। सो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें रहने के लिए घर चाहिए होता है। सो हाउस और वी कैन से द शेल्टर इज़ आवर बेसिक नीड फॉर आवर सर्वाइवल। शेल्टर हमारी बेसिक नीड है जो हमें चाहिए ही चाहिए अपना जीवन जीने के लिए, राइट। सो लेट्स लर्न अबाउट इट। लाइक फूड, होम इज़ ऑल्सो द बेसिक नीड ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स। जैसे खाना ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए, वैसे ही होम भी, घर भी ज़रूरी है सभी लिविंग बींग्स के लिए। वी ऑल लिव इन अ हाउस। A house protects us from heat, cold, rain, dust, wind, thieves, wild animals, insect, etc. हाउस हमें इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, बचा के रखता है। मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स मेक देयर ओन शेल्टर्स और हाउसेज। बहुत सारे लिविंग बींग्स खुद का शेल्टर बनाते हैं और खुद के हाउसेज बनाते हैं, राइट। सो लेट्स लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज। जस्ट बिकॉज डिफरेंट टाइप्स के हाउस होते हैं, सो टुडे वी विल लर्न अबाउट इट। Houses of human beings. People make different kinds of houses. They are of two types, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। दो टाइप के हाउस होता है जो एक इंसान बनाता है, जैसे कच्चा हाउस होता है किसी का एंड किसी का पक्का हाउस होता है। सो लेट्स लर्न अबाउट इट। कच्चा हाउस। सम हाउसेज आर मेड अप ऑफ बैम्बू, वुड, मड, स्ट्रोज एंड लीव्स। दे आर कॉल्ड कच्चा हाउस। जो हाउसेज मड, मिट्टी, स्ट्रोज, पत्तों, लकड़ियों और बैम्बू ट्री की जो लकड़ियाँ होती हैं उनसे बनते हैं, वो कच्चे हाउस कहलाते हैं। जैसे अगर आप सब गांव देख गए होंगे तो वहाँ पे अभी भी कुछ कच्चे हाउस होते हैं, क्योंकि आजकल के गांव में तो पक्के हाउस बनने स्टार्ट हो गए हैं और पक्के हाउस ही बने होते हैं, बट कुछ कच्चे हाउस भी आपको दिख जाएंगे। सो कच्चा हाउसेज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते जस्ट बिकॉज ये टेम्प्रेरी चीज़ों से बने होते हैं, लाइक मड, स्ट्रो। सो ये ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे पाते। दे आर मेनली फाउंड इन विलेजेस। ये गाँव में ही पाए जाते हैं। नाउ अ डेज पीपल इन विलेजेस ऑल्सो यूज सीमेंट ब्रिक्स टू मेक स्ट्रोंगर हाउसेज। सी यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि आजकल के लोग, जो गाँव के लोग हैं, वो भी सीमेंट और ब्रिक्स से अपने हाउसेज बनाने लगे हैं। सो वो पक्का हाउस कहलाएगा जो सीमेंट और ब्रिक से बनता है, जस्ट बिकॉज सीमेंट और ब्रिक से एक मजबूत हाउस बनता है, राइट। सो कच्चा हाउस किस किस चीज़ों से बनता है? वुड, बैम्बू ट्रीज, मड, स्ट्रो, लीव्स, एंड दे आर मेनली फाउंड इन विलेजेस। सो लेट्स लर्न अबाउट पक्का हाउस। सम हाउसेज आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, वुड एंड ग्लास। दे आर कॉल्ड पक्का हाउस। जो हाउस ब्रिक, सीमेंट, वुड, ग्लास इन सबसे बनते हैं वो कौन से हाउस कहलाते हैं? पक्के हाउस। Pakka houses are very strong. They are found in towns and cities. They are found in villages too. पक्के हाउस कहाँ पे होते हैं? ज़्यादातर टाउन्स एंड सिटीज़ में होते हैं, लेकिन अब विलेजेस में भी पक्के हाउस बनने स्टार्ट हो गए हैं। सो दिस इज़ द टाइप्स ऑफ हाउसेज, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। कच्चे हाउस थोड़े कम स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड पक्के हाउस स्ट्रॉन्ग होते हैं, जस्ट बिकॉज वो सीमेंट एंड ब्रिक से बनते हैं। सो लेट्स लर्न अबाउट द स्पेशल फीचर्स ऑफ अ गुड हाउस। एक गुड हाउस, एक अच्छे घर के क्या स्पेशल फीचर्स होने चाहिए? अ गुड हाउस हैज़ द फॉलोइंग स्पेशल फीचर्स। फर्स्ट वन इज़ अ गुड हाउस हैज़ प्रॉपर डोर्स एंड मैनी विंडोज। डोर्स एंड विंडोज अलाउ फ्रेश एयर एंड सनलाइट टू कम इन। सनलाइट किल्स मैनी जर्म्स दैट स्प्रेड डिसीजेज। जो एक अच्छा घर होता है उसमें प्रॉपर डोर्स होनी चाहिए, अच्छे दरवाजे होने चाहिए और विंडोज़ भी होनी चाहिए, जस्ट बिकॉज विंडोज़ और डोर से क्या होगा? फ्रेश एयर अंदर आएगी और सनलाइट अंदर आएगी, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होंगे वो किल होंगे और एक फ्रेश एयर हमारे घर में रहेगी, राइट। सो ये एक अच्छे हाउस की फीचर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकेंड इज़ अ गुड हाउस हैज़ अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी अवे डर्टी वाटर। सी हमारे हाउसेज में पाइपलाइन होती है जिसके ज़रिए वो जो डर्टी वाटर होता है वो बाहर चला जाता है, राइट। सो एक गुड हाउस की खासियत यही है कि वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, जिससे जो डर्टी वाटर है वो बाहर चला जाए। थर्ड स्पेशल फीचर इज़ अ गुड हाउस हैज़ wire netting on the doors and windows to keep away mosquitoes, flies and other harmful insects.
वायर नेटिंग जैसे विंडोज़ होती हैं, वहाँ पे जाली लगी होती है, तो एक अच्छे हाउस की पहचान यही है कि जो विंडोज़ होती हैं, जो डोर्स होती हैं, वहाँ वायर नेटिंग हो, जिसकी वजह से मच्छर, फ्लाइज, मक्खियाँ और हार्मफुल इंसेक्ट्स घर के अंदर ना आ पाएँ। अ गुड हाउस शुड ऑल्सो हैव अ लॉन इन फ्रंट ऑफ इट, इट गिव्स ब्यूटी टू द हाउस। एक अच्छे हाउस की पहचान ये भी है कि अगर घर के सामने लॉन होगा तो वो उस हाउस की ब्यूटी को बढ़ा देता है, उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है। लॉन मीन्स जैसे चौक होता है, कईयों के हाउस के बाहर गार्डन होते हैं, सो ऐसे होना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द स्पेशल फीचर्स ऑफ अ गुड हाउस। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट सम स्पेशल टाइप्स ऑफ हाउसेस। जो आज तक हाउसेज हैं जहाँ पे लोग रहे हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सो आवर फर्स्ट हाउस इज़ हट। हट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस। हट विलेजेस में होती हैं ज़्यादातर, सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस। ये कच्चा हाउस का एक एग्जाम्पल है। इट इज़ मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ, बैम्बू एंड वुड। इट इज़ जनरली फाउंड इन प्लेन रीजन्स। जो प्लेन रीजन्स होते हैं, बिल्कुल खाली इलाके होते हैं, वहाँ पे हट पाई जाती है। और ये किसका एग्जाम्पल है? कच्चा हाउस का। इग्लू। सी इग्लू आर्कटिक, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल -डिग्री में होता है, वहाँ पे इग्लू पाई जाती है और ये स्नो से बनती है, बर्फ़ की बनी हुई होती है ये इग्लू। ये नाम है इस टाइप के हाउस का। देख सकते हैं जैसे कि आप, ये बर्फ़ से बनी हुई है। सो एन इग्लू इज़ अ हाउस मेड अप ऑफ स्नो। किससे बनी होती है ये? स्नो से। एस्किमोज लिव इन इग्लू। एस्किमोज एक तरह की जनजाति है, एक तरह के लोग हैं जो इग्लू जैसे हाउस में रहते हैं। इट रिमेन्स वार्म इनसाइड। ये भले ही बर्फ़ से बनी होती है पर ये अंदर से गर्म होती है। इग्लूज आर फाउंड इन स्नो कवर्ड एरियाज़। ये कहाँ पे मिलते हैं? स्नो कवर्ड एरियाज़, जहाँ पे बहुत सारी स्नो होती है, जहाँ पे टेम्परेचर -डिग्री में होता है, वहाँ पे इग्लू जैसे हाउस पाए जाते हैं। एंड उस पर कौन से जनजाति के लोग रहते हैं? एस्किमोज, राइट। सो लेट्स मूव फर्दर। हाउस बोट। अ हाउस बोट इज़ अ हाउस ऑन अ बोट। ये कैसा हाउस है? ये एक बोट के ऊपर हाउस बना होता है। इट इज़ अ फ्लोटिंग हाउस। ये फ्लोट करता हुआ हाउस होता है, मीन्स जैसे समुद्र में चलता हुआ हाउस होता है। जस्ट बिकॉज ये बोट के ऊपर बना हुआ है, तो बोट कहाँ होती हैं? समुद्र में पाई जाती हैं, सो फ्लोट करती हैं, तो ये एक फ्लोटिंग हाउस कहलाता है। इन कश्मीर सम पीपल लिव इन दीज हाउसेज। सच हाउसेज हैव ऑल द फैसिलिटी इनसाइड द बोट। कश्मीर और केरल जैसे इलाकों में ये बोट हाउस पाए जाते हैं, जो हाउसेस बोट पे बने होते हैं, जो घर बोट पे बने होते हैं, और ये इन घरों में हर तरह की फैसिलिटी पाई जाती है जो एक नॉर्मल हाउस में होती है। सो दिस इज़ कॉल्ड हाउस बोट। इन चाइना हाउस बोट आर कॉल्ड सैम्पन्स। चाइना में हाउस बोट को किस नाम से जाना जाता है? सैम्पन्स। सो लेट्स मूव फर्दर। See, our next house is caravan. Caravan is a house on wheels. It is a moving house. Gypsies live in it. They move from one place to another in a caravan. Caravan जैसे कि आप देख सकते हैं, ये घर पहियों पे बना होता है, मीन्स इस घर पे पहिए लगे होते हैं ताकि, और ये घर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। और जिप्सीज़ एक तरह की जनजाति, एक तरह के लोग हैं जो ऐसे घरों में रहते हैं, जो मूव करते रहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। नॉर्थ अफ्रीका में ज़्यादातर कारवन पाए जाते हैं, कारवन जैसे हाउस। सो आई होप यू गेट अबाउट द कारवन। लेट्स मूव फर्दर। स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट मीन्स क्या होता है? जैसे बांस आपने सुना होगा, जो बड़ा सा डंडा होता है, तो ये जो हाउस होते हैं स्टिल्ट हाउस, ये उन बांस पे, जैसे बड़े बड़े डंडों पे, जैसे आप देख रहे हो पिक्चर के अंदर, उसके ऊपर बने होते हैं। वाई? जस्ट बिकॉज जिस एरिया में ज़्यादा हैवी रेन होती है, जिसकी वजह से पानी भर जाता है, जब फ्लड आते हैं, तो उसकी वजह से स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं। ये ज़्यादातर असम में पाए जाते हैं। कौन सी स्टेट में? असम में ज़्यादातर पाए जाते हैं स्टिल्ट हाउस। अ स्टिल्ट हाउस इज़ बिल्ट इन सच प्लेसेस वेयर इट्स रेन हैविली। जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पे स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं। इट स्टैंड्स ऑन अ सेट ऑफ वुडन पोस्ट। इट इज़ क्वाइट हाई अबव द ग्राउंड। ये ज़मीन से ऊंचाई पर होते हैं, जस्ट बिकॉज ये वुडन पोस्ट जो होते हैं, वुडन जो लकड़ी होती है, उसके ऊपर बनाए जाते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टिल्ट हाउस। और ये असम में ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये स्टिल्ट हाउस क्यों बनाए जाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी रेन, ज़्यादा बारिश के कारण स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर।
टेंट, टेंट तो आपने सुना भी होगा, जैसे कैंपिंग करने जाते हैं तो लोग टेंट में रहते हैं। सो टेंट इज़ अ हाउस मेड अप ऑफ कैनवास। कैनवास एक टाइप का क्लॉथ है, एक फैब्रिक है जिससे टेंट बनाया जाता है। ये बहुत थोड़ा मोटा होता है। जैसे आपके रेनकोट होते हैं जिससे आप बारिश में बचाव करते हैं, वैसे ही टेंट जो होता है उससे हर वेदर में बचाव होता है। ये इस तरह का कपड़ा होता है, कैनवास जिसे बोला जाता है। इट कैन बी ईजली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सोल्जर्स एंड कैंपर्स जनरली यूज टेंट। जो सोल्जर्स होते हैं हमारे, जो बॉर्डर्स पे रहते हैं, वो भी टेंट्स में रहते हैं। एंड कैंपर्स किन्हें बोलते हैं? जो कैंपिंग करते हैं। जनरली यूज टेंट्स, ये सब लोग टेंट्स में रहते हैं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज। हट जो कीचड़, स्ट्रोज, बैम्बूज और वुड से बनी होती है। कीचड़ मीन्स जैसे लिपाई की जाती है इन घरों में, कीचड़ जैसे होता है, मड होता है, उससे लिपाई की जाती है हर्ट वगैरह की। सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ कच्चा हाउस। इग्लू जो आर्कटिक और नॉर्थ पोल और साउथ पोल जहाँ पे -डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ पाए जाते हैं इग्लू जैसे हाउस। और यहाँ पे एस्किमोज टाइप के लोग रहते हैं, एस्किमोज जनजाति रहती है। हाउस बोट जो बोट पे हाउस बना होता है, ये कश्मीर और केरल जैसे स्टेट्स में पाया जाता है। और चाइना में हाउस बोट्स को सैम्पन्स कहते हैं। कारवान जिन पे व्हील लगी होती है, जिनको हम मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ईजली। और जिप्सीज जनजाति के लोग कारवान में रहते हैं मोस्टली। एंड स्टिल्ट हाउस जो बांस के लकड़ी के उस पे बने होते हैं और ग्राउंड लेवल से ऊपर। एंड वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी रेन। ये असम स्टेट में पाए जाते हैं मोस्टली। टेंट इज़ अ हाउस मेड अप ऑफ कैनवास। कैनवास इज़ अ टाइप ऑफ क्लॉथ, एक प्रकार का कपड़ा होता है जिसे टेंट बनते हैं। वी कैन ईजिली मूव टेंट जस्ट बिकॉज हम टेंट को फोल्ड करके कहीं पे भी हम टेंट लगा सकते हैं अपना। सोल्जर्स एंड कैंपर्स जनरली यूज़ टेंट्स। ज़्यादातर कैंपर्स जो होते हैं, जो कैंपिंग करते हैं, वो टेंट का यूज़ करते हैं। सोल्जर्स जस्ट बिकॉज वो बॉर्डर एरिया पे रहते हैं तो वहाँ पे हाउसेस तो होते नहीं है, तो वो दे ऑल्सो यूज़ टेंट्स। सो लेट्स मूव फर्दर। फ्लैट्स, बंगलोज एंड स्काई क्रैपर्स। फ्लैट्स, बंगलोज एंड स्काई क्रैपर्स। स्काई क्रैपर्स क्या होते हैं? जो मल्टी स्टोरेड होती हैं, जैसे कई मंजिल के जो होते हैं उन्हें स्काई क्रैपर्स कहते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। फ्लैट्स, बंगलोज एंड स्काई क्रैपर्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पक्का हाउस। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पक्का हाउस है। पीपल लिविंग इन सिटीज़ बिल्ड फ्लैट्स एंड बंगलोज। In big cities, we can see very tall buildings. They are called skyscrapers. See, बंगलो जो होता है वो जैसे एक नॉर्मल हाउस होता है, उससे बड़ा जो हाउस होता है उसे हम बंगलो कहते हैं। जस्ट बिकॉज इसमें सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। यहाँ पे गार्डन भी होता है, लॉन भी होता है, स्विमिंग पूल भी होता है ज़्यादातर बंगलों में। सो इट इज़ ऑल अबाउट बंगलो। एंड फ्लैट्स क्या होते हैं? जैसे बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें अपार्टमेंट्स होते हैं। उन अपार्टमेंट्स में डिफरेंट अपार्टमेंट्स में डिफरेंट फ्लोर्स पे फ्लैट होते हैं। उन फ्लैट का में हमें पूरा हाउस मिलता है, जैसे कि उसमें टॉयलेट भी होता है, किचन भी होता है, बेडरूम भी होता है, ड्राइंग रूम भी होता है, तो उसे हम फ्लैट बोलते हैं। एंड स्काई क्रैपर्स क्या होते हैं? स्काई क्रैपर्स जनरली आर द टॉल बिल्डिंग। जो फ्लैट्स और ये अपार्टमेंट्स होते हैं उससे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं, जैसे कि आपने फॉरेन कंट्रीज़ अमेरिका में भी देखी होंगी कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वो कंपनी की, उन्हें हम स्काई क्रैपर्स कहते हैं। ये मल्टी स्टोरेड होते हैं, मतलब इसमें कई मंजिलें होती हैं, मोर देन 40 भी हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्लैट, बंगलोज एंड स्काई क्रैपर्स। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट हाउसेस एंड होम्स where the human beings lives. We learn about the kacha house and pakka house. We learn about different houses: hut, igloo, houseboat, kaga, stilt house, tent, flats, bungalows and skyscrapers also. So this is all types of houses where a human being live. There's a fact file. A flat is a set of rooms on one floors of a building or a skyscraper. See, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लैट क्या होता है? सेट ऑफ रूम होता है जहाँ पे पूरे जैसे एक हमारे घर में सारे रूम्स होते हैं, और वैसे ही एक फ्लैट में सारे रूम्स होते हैं, इसलिए उसे फ्लैट बोला जाता है। एक ही फ्लोर पे ऑफ अ बिल्डिंग और स्काई क्रैपर। स्काई क्रैपर में भी फ्लैट हो सकते हैं और एक बिल्डिंग में भी फ्लैट हो सकते हैं। एक बिल्डिंग और स्काई क्रैपर में ये डिफरेंस है, स्काई क्रैपर बहुत टॉल होते हैं, बहुत ऊँचे होते हैं, बहुत मल्टी स्टोरेड होते हैं, मतलब उसमें कई मंजिलें होती हैं rather than a building. Okay, so this is all about. Now what you have to do, you have to read this chapter till this topic, and there is a one more task for you.
See, you learn about the different types of houses, kacha and pakka house, in which a human being live. So there is an activity that you have to paste the picture of the followings and write kacha और pakka below them. See, कारवान जैसे एक हाउस है उसकी पिक्चर लगानी है, स्काई कैपर की पिक्चर, इग्लू की पिक्चर, स्टिल्ट हाउस की पिक्चर, फ्लैट की एंड हाउस बोट की पिक्चर लगानी है. और ये जो लाइन दे रखी है इसमें आपको लिखना है कि जैसे स्काई कैपर कच्चा हाउस है या पक्का हाउस है, इग्लू कच्चा हाउस है या पक्का हाउस है. ये आपको एक्टिविटी करनी है अपनी बुक में ही. ओके, सो आई होप you all get all the things. So take care.